बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah, who is the most beneficent and the merciful. This is week number 7 and the video number 7. This is the last video of our content. In this video, we will review our content, which chapter we have been done in previous videos. So you can see on the board there is a content. सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? First, what did we read in our first videos? That chapter number 1, healthy livings. And what are the topics of healthy livings? These all are the topics which we have done in our previous video. Number 1, healthy food. Healthy food means ऐसे फूड्स जो कि हम अपने रेगुलर वीक में यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ फूड्स ऐसे होते हैं कि सम फूड्स आर हेल्दी एंड सम फूड्स आर अनहेल्दी. जस्ट लाइक इन हेल्दी फूड्स there are जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड राइस, मीट. एंड इन अनहेल्दी फूड, as we know that the cold drinks, burgers, sweets are unhealthy food. So we should eat healthy food in our daily life. So because of that we will healthy, or we do not have any sickness or any illness, and we do our work properly. Now the second topic is storing food. How do we store food? We should store food on a proper place, like we should store vegetables and fruits in refrigerator, and the biscuits in airtight container, in the biscuits and chips in the airtight container, and rice, pulses, uncooked rice, pulses, and all other things put on dry places. If we do not keep the food on their right place, then it will be stale, मतलब वो ख़राब हो जाएंगे और गल सड़ जाएंगे अगर हम उनको उनकी सही जगह पे नहीं रखेंगे. तो we should keep our food properly on their right places. Now in third topic is human teeth. As we know that newborn baby has no teeth, and a very young child, just like you or younger than you, और आपसे छोटे जो होते हैं वो have 20 milk teeth, and an adult have 32 set of teeth. All these sets contain 3 types of teeth: incisors, canines, premolars, and molars. What are the functions of incisors? Incisors क्या करते हैं? incisors का काम क्या है? incisors से हम क्या कर सकते हैं? bite and cut. incisor used for bite and cut the food. Canines used for tear and grip the food, and the premolars and molars for crushing and grinding the food. मतलब incisor से हम जैसे फूड को कट कर सकते हैं. बिस्किट खाते हैं तो वो हम आगे के दांतों से काटते हैं. कैनाइंस से क्या करते हैं? कैनाइंस क्या होते हैं? शार्प एंड पॉइंटेड टीथ होते हैं, जिसकी वजह से हम किसी चीज़ को टेयर करना हो, किसी रैपर को टेयर करना हो तो हम उसे टेयर कर सकते हैं, और इन्हीं हमारे कैनाइन से क्या होता है? फूड हमारे मुंह में ग्रेप हो जाता है. इसी तरीके से प्री मोलर्स एंड मोलर्स से क्या होता है? ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग कर सकते हैं, चबा सकते हैं, यानी कि ना. तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ टीथ: इंसीजर्स, कैनाइंस एंड प्री मोलर्स एंड मोलर्स. नाउ द फोर्थ टॉपिक इज एनिमल टीथ. In animal have different types of teeth because of their habitat of foods. उनकी जो फूड के हैबिटाट्स होती हैं उसकी वजह से उनके टीथ डिफरेंट होते हैं. जस्ट लाइक सम एनिमल्स ईट ग्रास, सम एनिमल्स ईट मीट, एंड सम एनिमल्स ईट बोथ. तो ऑल एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी टीथ. जस्ट लाइक सम एनिमल्स लाइक
cow and goat have incisors. Incisors have premolars and molar. Herbivores animals have raw sets of molar. जो herbivores animals होते हैं उनके पास molars होते हैं ताकि वो अपने ग्रास वगैरह को क्या कर सकें, अच्छी तरीके से ग्राइंड कर सकें जो प्लांट खाते हैं. इसी तरह से कार्निवोर्स एनिमल्स जो कि मीट खाते हैं. कार्निवोर्स एनिमल्स आर दोज एनिमल्स विच ईट मीट. तो कार्निवोर्स एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं विच हैव कैनाइंस, ताकि वो क्या कर सकें, वो जो मीट होता है उसको या वो अपना शिकार जब करते हैं तो उससे वो उसको ट्रेयर कर सकें. तो लाइक फॉक्स एंड लाइन हैव कैनाइंस टीथ. एंड सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड meat. So they have 3 types of teeth: incisors, canines and premolars and molar. Just like humans की तरह उनके teeth भी 3 types के होते हैं. तो this is the animal teeth. This is the topic of animal teeth. Now exercise and sport. In exercise and sport we learn about different type of exercises like swimming, jumping or stretching, bending or running, walking. So due to these exercises we keep healthy and we build our muscles strong and our heart strong and build our muscles and improve our muscles due to these exercises. So these all the exercises are very necessary to do and for keeping healthy. Now healthy living survey. In this survey what did you do in your activity book? You write your daily routine or you write योर डायरी. हाउ डू यू लिव हेल्दी, मतलब आप किस तरीके से हेल्दी रहते हैं. इस सर्वे में आपने वो किया था कैसे आप हेल्दी रहते हैं, आप कैसा फूड लेते हैं, मतलब विच टाइप ऑफ फूड यू ईट. ये जो हेल्दी लिविंग सर्वे इसमें ये सब शामिल है, हेल्दी फूड इसमें एंड एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स. तो आप किस तरीके से हेल्दी फूड्स को लेते हैं, किस तरीके से आप एक्सरसाइज करते हैं और आपकी डेली लाइफ की रूटीन क्या है, और इसके एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स और हेल्दी फूड्स के अलावा क्या ज़रूरी है. इसमें आपके अच्छी स्लीप होनी चाहिए, मतलब आप अच्छे तरीके से सोएं, अपनी नींद पूरी करें और इसके अलावा अपना वर्क प्रॉपर सही से हर काम को अपने उसके वक्त पे करें. ऐसा नहीं कि जो है आप सिर्फ खेले जा रहे हैं या सिर्फ स्टडी करे जा रहे हैं, तो बहुत रो. मतलब हर चीज़ के लिए आपको एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, एक शेड्यूल बनाना चाहिए कि आपको किस टाइम खाना है, किस टाइम आपको अपना वर्क करना है और किस टाइम आपको खेलना है, क्योंकि एवरीथिंग इज़ नेसेसरी. और किस टाइम आपको अगर आपके पास थोड़ा टाइम बचता है तो आप उसमें अपनी एक्सरसाइज भी शामिल कर सकते हैं, या वॉकिंग और रनिंग जो है ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको अपने डेली यूज़ में रखनी चाहिए, जिससे आप क्या रह सकते हैं, फिट और हेल्दी रह सकते हैं. तो दिस इज़ द आवर चैप्टर नंबर 1 हेल्दी लिविंग. तो ऑल द एक्टिविटी बुक्स, ऑल द एक्टिविटीज़ ऑन वर्क बुक एंड ट्राई इट आउट ऑफ द इन द बुक्स. तो डन इन योर कॉपी, ट्राई इट आउट डन इन योर नोटबुक एंड एक्टिविटीज़ इन योर वर्क बुक. तो ऑल द एक्टिविटीज़ 1.1 to 1.8. Complete all the activities in your workbook of chapter number 1 properly from the help of your content. आपको content जो दिया गया है उसमें से आपको इस activity book के अंदर अपना सारा वर्क complete करना है. उसके अलावा आपने वीडियो में भी देखा है, मैंने ऐसे अच्छे से आपको समझा दिया. And read the chapter for MCQs. MCQs जो हैं आपके वो कैसे होंगे, MCQs कहीं से भी बुक में से आपको पता है MCQs आ सकते हैं. तो इसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से क्या करना है, अपना चैप्टर पूरा रीड करना है. इसके MCQs आपके कंटेंट में भी दिए गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वही कंटेंट आपके असेसमेंट में आए. तो आपको असेसमेंट की तैयारी करने के लिए चैप्टर को अच्छे तरीके से रीड करना है ताकि आप उसके लिए MCQs प्रिपेयर कर सकें, MCQs कर सकें अपने असेसमेंट में. नाउ कम टू द चैप्टर नंबर 2. चैप्टर नंबर 2 इज़ फिश एंड फ्रॉग. फिश एंड फ्रॉग हमने जैसे पढ़ा, वेयर डू फिश एंड फ्रॉग्स लिव. फिश एंड फ्रॉग्स कहाँ रहते, दे लिव इन वाटर. दे आर फिश लिव इन वाटर एंड फ्रॉग्स लिव इन वाटर एंड लैंड बोथ. फिश एंड फ्रॉग्स आर वर्टिब्रेट्स. इनके सिमिलरिटीज़ क्या क्या हमने पढ़ी थी, सिमिलरिटीज़ पढ़ी. एंड सेकेंड टॉपिक वी लर्न अबाउट कंपेयरिंग फिश एंड फ्रॉग. इनको हमने कंपेयर भी किया था, फिश एंड फ्रॉग को हमने कंपेयर भी किया था. कैसे कंपेयर किया था, सबसे पहले हमने इनको देखा कि ये कहाँ रहते हैं. दे लिव, फिश लिव इन वाटर एंड फ्रॉग्स लिव इन बोथ वाटर एंड लैंड. फ्रॉग्स दोनों जगह पर रह सकते हैं, पानी में भी और लैंड पे भी. क्यों रह सकते हैं और फिश क्यों नहीं रह सकती है, बिकॉज जब हमने इसे कंपेयर करते हैं तो कंपेयरिंग फिश एंड फ्रॉग. तो फिश लिव्स इन वाटर बिकॉज दे हैव फिन्स
और दे हैव गिल्स, फिश हैव गिल्स फॉर ब्रीथ अंडर वाटर ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए फिश के पास क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, ठीक है। एंड फ्रॉग्स हैव बोथ लंग्स एंड गिल्स और मॉइस्ट स्किन। फ्रॉग्स के पास क्या होती है, लंग्स भी होते हैं, गिल्स भी होती है और मॉइस्ट स्किन भी होती है। ड्यू टू गिल्स दे कैन ब्रीथ अंडर वाटर एंड ड्यू टू मॉइस्ट एंड ड्यू टू लंग्स दे कैन ब्रीथ ऑन दी लैंड। मतलब लंग्स की वजह से फ्रॉग जो हैं लैंड पे सांस ले सकते हैं और गिल्स की वजह से फ्रॉग क्या कर सकते हैं, ज़मीन सांस ले गिल्स की वजह से फ्रॉग्स अंडर वाटर ब्रीथ कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं। इसके अलावा और इसकी क्या क्या सिमिलरिटीज़ थी कि फिश एंड फ्रॉग बोथ आर वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट एनिमल्स क्या होते हैं, विच हैव बैकबोन्स, ऐसे एनिमल्स जिनकी बैकबोन होती है तो दोज आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। तो फिश एंड फ्रॉग आर वर्टिब्रेट। फिश एंड फ्रॉग क्या है, वर्टिब्रेट्स हैं, जैसे हमने अपनी बुक में भी पढ़ा था, फिश एंड फ्रॉग्स आर वर्टिब्रेट्स। तो इसके बाद इसकी साइड सिमिलरिटीज़ और क्या क्या हमने सिमिलरिटीज़ पढ़ी थी इसके अंदर, फ्रॉग और फिश, सॉल्ट वाटर फिश एंड फ्रेश वाटर फिश आर डिफरेंट। सॉल्ट वाटर में रहने वाली फिशेस और फ्रेश वाटर में रहने वाली फिशेस क्या होती हैं, वो अलग होती हैं। सेम लाइक इसी तरह से लैंड पे रहने वाले फ्रॉग्स और वाटर पे रहने वाले फ्रॉग्स डिफरेंट होते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रॉग, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश। फिश की भी बहुत सारी टाइप्स हैं और फ्रॉग्स की भी बहुत सारी टाइप्स हैं। कुछ फिशेस ऐसी हैं जो सॉल्ट वाटर में रहती हैं और कुछ ऐसी हैं जो फ्रेश वाटर में रहती हैं। इसी तरह कुछ फ्रॉग्स ऐसे हैं जो वाटर में होते हैं और कुछ फ्रॉग्स ऐसे हैं जो कि लैंड पे भी सर्वाइव कर सकते हैं। इसके अलावा हमने उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, फिश एंड फ्रॉग, स्ट्रक्चर ऑफ फिश एंड फ्रॉग। फिश के पास क्या क्या चीज़ें होती हैं और फ्रॉग्स के पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, यू कैन सी इन योर बुक पेज नंबर 44। फिश हैव टेल, फिन्स, स्केल्स एंड गिल्स। फिश एंड गिल कवर्स, और गिल फिश के पास क्या क्या चीज़ें थी, टेल थी, फिन्स थी, गिल कवर थे और स्केल्स थे। फॉर देयर बॉडी कवरिंग, फॉर देयर swim in water they have fins or tails, or for gill have for their breathing they have gills. And the structure of frog, what does the frog have? Frog have eyes, nostril, ear, moist skin, hind legs and forelegs. फ्रॉग के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि फ्रॉग के पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, नोस्ट्रिल होती है, आई होती है, यू कैन सी इन योर बुक ऑन पेज नंबर 48 कि दिस इज़ द फ्रॉग एंड फ्रॉग इन द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रॉग। Frog have eye, nostril, hind leg, foreleg, moist skin, air। तो ये सारी चीज़ें किसके पास होती हैं, फ्रॉग के पास होती हैं। हिंड लेग का क्या काम होता है, ड्यू टू हिंड लेग दे कैन जम्प वेरी फार। हिंड लेग की वजह से ये बहुत दूर तक क्या कर सकता है, जंप कर सकता है। और मॉइस्ट स्किन, ड्यू टू मॉइस्ट स्किन दे कैन ब्रीथ ऑन अंडर वाटर। मॉइस्ट स्किन की वजह से ये अंडर वाटर ब्रीथ कर सकता है। इसके अलावा इसकी आई होती है, नॉस्ट्रिल होती है एंड फोर लेग्स भी होते हैं। दे आल्सो हेल्प देम जंपिंग और स्विमिंग इन द वाटर। दे आल्सो हैव वेब फूट। जो फ्रॉग्स जो होते हैं पानी में रहते हैं उनके जो फूट होते हैं वो कैसे होते हैं, वेब होते हैं ताकि वो पानी में क्या कर सकें, तैर सकें। वेब फीट, दे हैव वेब फीट फॉर स्विम इन अंडर वाटर, यू कैन सी ऑन द पेज नंबर 50। हाउ डू दे रिप्रोड्यूस, द सेकेंड इज हाउ डू दे रिप्रोड्यूस, ये अपनी रिप्रोडक्शन किस तरीके से करते हैं। तो फिश एंड फ्रॉग बोथ ले एग्स, वो दोनों अंडे देते हैं और ड्यू टू द एग्स दे कैन रिप्रोड्यूस और दे कैन ग्रोथ। तो फिश हमने फिश की और फ्रॉग की लाइफ साइकिल हमने पढ़ी थी, द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग ऑन पेज नंबर 52। देयर इज द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग ऑन पेज नंबर 52। सबसे पहले क्या होता है, एग होता है, देन एग कन्वर्ट इनटू टैडपोल, देन टैडपोल कन्वर्ट। टैडपोल में बहुत सारी चेंजेस होती हैं। सबसे पहले उसमें गिल्स बनते हैं, देन हिंड लेग, देन फोर लेग्स एंड देन उसकी जो टेल होती है वो डिसअपियर हो जाती है एंड इट बिकम अ फ्रॉग। ये सब चीज़ें जो पूरा प्रोसेस होता है ये एक पूरे फ्रॉग के अंदर होता है, जिसकी वजह से फ्रॉग की क्या होती है, एक लाइफ साइकिल पूरी बनती है। टैडपोल्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ रह सकते हैं, पानी में रह सकते हैं, क्योंकि फ्रॉग जो हैं अपने जो अंडे होते हैं वो कहाँ देते हैं, वो वाटर में ही देते हैं, लैंड पे नहीं देते हैं बल्कि वाटर में ही देते हैं। इनको इसीलिए एम्फीबियंस कहा जाता है। इसके अलावा जो टैडपोल्स इनके होते हैं वो सिर्फ सर्वाइव कहाँ करते हैं, वाटर में ही सर्वाइव करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास गिल्स होते हैं, बिकॉज दे ओनली हैव गिल्स, दे डोंट हैव लंग्स। उनके पास लंग्स नहीं होते हैं
ब्रीथ करने के लिए उनकी स्किन भी इतनी डेवलप नहीं होती है, इसीलिए तो दे कैन सर्वाइव ओनली अंडर वाटर बिकॉज ऑफ देयर गिल्स। तो इट इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि व्हाट दे ईट, वो खाते क्या हैं। फिश एंड फ्रॉग क्या खाते हैं? तो फिश इज स्मॉल फिशेज और एल्जीज और सम इंसेक्ट्स, हर्ब्स, एंड फ्रॉग्स ईट इंसेक्ट्स के अलावा और क्या खाते हैं? स्पाइडर्स, और छोटे छोटे स्पाइडर्स इंसेक्ट्स होते हैं, स्नेल्स होते हैं, वॉर्म्स होते हैं, दे कैन ईट। क्योंकि फ्रॉग्स है वह टंग, उसकी जो फ्रॉग की जो टंग होती है वो स्टिकी टंग, उसकी टंग कैसी होती है? स्टिकी होती है, जो वो अपनी ज़ुबान को मुंह से बहुत ज़्यादा दूर तक बाहर निकाल सकता है, और उस पर इंसेक्ट क्या होते हैं? आके स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो सकता है? स्टिक होने की वजह से फ्रॉग की जो ज़ुबान जो स्टिक हो जाते हैं, तो वो उसको फिर अपने मुंह में रख लेता है और उसे वो खा लेता है, क्योंकि इसके टीथ तो होते नहीं है, इसीलिए इसे पूरा अंदर निकल लेता है अपने स्टमक के अंदर। तो इस तरह से फ्रॉग क्या करता है? अपना खाना खाता है, ये अपना फीड लेता है इस तरह। तो टैडपोल्स क्या खा सकते हैं? सिर्फ टैडपोल्स ईट एल्गी, वाटर प्लांट्स एंड फ्रॉग एग्स। टैडपोल्स जो होते हैं, कुछ टैडपोल्स ऐसे होते हैं जो कि फ्रॉग एग भी खा लेते। दीज आर द कंपेयरिंग बिटवीन फिश एंड फ्रॉग। तो ये सब क्या थी? कंपेयरिंग थी फिश एंड फ्रॉग के दरमियान। इसके अलावा हमने इस चैप्टर में और क्या पढ़ा था? द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज हमने इस चैप्टर में पढ़ी थी। तो कैमोफ्लेज के अंदर क्या होता है? कैमोफ्लेज मर्जिंग एंड बैंडिंग। सम एनिमल्स क्या होते हैं? अपने आप को मर्ज कर लेते हैं और अकॉर्डिंग टू दियर सराउंडिंग्स, अपने सराउंडिंग्स के लिहाज से अपने आप को उसमें मर्ज कर देते हैं, उसमें बैंड कर देते हैं। जस्ट लाइक आपने कैमिलोन की एग्जांपल सुनी होगी कि कैमिलोन्स का जो कलर है वो चेंज होता रहता है। जैसे अगर बोट पे हो तो वो ग्रीन कलर का है तो वो ग्रीन कलर का कैमिलोन हो जाएगा। इस तरह से अगर कहीं इसे किसी भी जगह पे हो उस हिसाब से वो अपनी शेप कलर को चेंज कर लेता है। तो दिस इज़ कॉल्ड कैमोफ्लेज। तो दीज एनिमल्स जो ऐसे एनिमल्स जो कि अपनी अपनी शेप्स को चेंज कर लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो कैमोफ्लेज कहलाते हैं। तो फिश एंड फ्रॉग्स भी ऐसे होते हैं जो कि अपने आप को एनवायरनमेंट और सराउंडिंग के अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं? मर्ज कर लेते हैं और बैंड कर लेते हैं। यू कैन सी इन योर बुक ऑन पेज नंबर 56 एंड 57। ठीक है, तो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ फिश। आपको ऐसा लग रहा होगा कि स्टोन है, लेकिन ये स्टोन नहीं है, बल्कि ये क्या है? फिश है। एंड देन दिस इज़ द पिक्चर ऑफ फ्रॉग। तो ये पिक्चर किसकी है? फ्रॉग की है। लेकिन आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर फ्रॉग, लेकिन ऐसा लग रहा होगा कि लीव्स हैंगे, ठीक है ना, पर लेकिन क्या है? ये इसके अंदर इन्होंने अपने आप को छुपा लिया। और ऐसा करने की बड़ी वजह क्या होती है? ताकि ये अपने आप को सेव कर सके अपने एनिमीज़ से। ठीक है, तो इसे हम क्या कह रहे होते हैं? इसे हम कहते हैं, इसे हम क्या कह रहे हैं? कैमोफ्लेज कह रहे हैं इसे हम। तो दीज आर द टॉपिक इन चैप्टर नंबर 2। Where do fish and frogs live? Comparing fish and frog and camouflage. So activities and try it out are included in this chapter also. So you have done try it out in your notebooks. All try it out you have done in your notebooks of chapter number 1 and chapter number 2. डू ट्राई इट आउट। जो ट्राई इट आउट है आपको चैप्टर नंबर 1 के, चैप्टर नंबर 2 के कहाँ करने हैं? आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। और वर्कबुक एक्टिविटीज़ कहाँ करनी है? आपको वर्कबुक में करनी है। जो जो वर्कबुक एक्टिविटीज़ आपको कंटेंट के अंदर सॉल्व करके दी गई हैं, आपको वही वर्कबुक एक्टिविटीज़ अपनी वर्कबुक में करनी। कुछ वर्कबुक एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिनको लेफ़्ट कर दिया गया है, और बाकी इस चैप्टर की तो सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड है। कोई भी एक्टिविटी ऐसी नहीं है जिसे छोड़ा गया है या लेफ़्ट किया गया। इसी तरह से चैप्टर नंबर 1 की भी सारी एक्टिविटीज़ थी 1.1 to 1.8, एंड चैप्टर नंबर 2 की 2.1 to 2.8।
ऑल एक्टिविटीज़ 2.1 to 2.8 एंड इसकी भी 1.1 to 1.8 सारी एक्टिविटीज़ हैं इसकी भी सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि आपको करनी है। और आपको हमने क्या और सिखाया था, पेपर फ्रॉग भी बनाया था आपने, फिश एंड फ्रॉग, जो कि आपने अपनी वर्कबुक में क्या किया था, पेस्ट किया था। आपने ये भी बनाया था और आपने इसको पेस्ट किया था, ठीक है। वन 1.8 हमने लेफ्ट की थी, 1.9 की थी, 1.8 इंक्लूड नहीं है। 1.1 to 1.7 प्लस 1.9, इसमें 1.8 इंक्लूड नहीं थी। 1.7 के बाद हमने कौन सी एक्टिविटी करी है, 1.9, सही है। इसके बाद ये तो आपके थे दोनों चैप्टर्स फिश एंड फ्रॉग्स के। एक्टिविटी बुक आप अच्छे से देख लीजिए किस तरीके से आपको इसमें वर्क करना था। पेज नंबर 19 से ये वर्क स्टार्ट हो रहा था। टेबल फॉर फिश, इसे आपने कंप्लीट करना था। टेबल फॉर फ्रॉग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिश, सी हॉर्स के बारे में आपको कुछ बताया गया था इसके अंदर कि सी हॉर्स क्या है। सी हॉर्स इज़ अ फिश और सी हॉर्स इज़ अ सी एनिमल। तो सी हॉर्स क्या था हमने जब पढ़ा तो सी हॉर्स इज़ आल्सो अ फिश। इसके सारे कैरेक्टर्स फिश वाले थे एक्सेप्ट ऑफ दियर इस बॉडी, इसकी बॉडी नहीं थी लेकिन फिश की जैसी, लेकिन इसके जो सारे कैरेक्टर थे वो कैसे थे, फिश की तरह हैं इसके सारे कैरेक्टर्स। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रॉग एंड देन कंपेयरिंग फिश एंड फ्रॉग्स के दोनों में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। एंड देन वी मेक फिश एंड फ्रॉग बाय A4 size paper and then we do activity 2.8. Here activity book is complete of chapter number 2. Chapter number 2 here completed. यहाँ पे आपका chapter number 2 क्या हुआ, complete हुआ। इसी तरह आपने chapter number 1 complete किया है, chapter number 2 complete किया है। Now come to the chapter number 3. Try it out, जो आपको मैंने करवाए हैं उसको आप अच्छे से अपनी बुक से क्वेश्चंस देख सकते हैं और क्वेश्चन सारे बुक के अंदर थे और सॉल्यूशन आपके पास सारे कहाँ थे, कॉपी में थे। चैप्टर नंबर 1 के कुछ टाइट आउट्स थे और इसी तरह से चैप्टर नंबर 2 के भी कुछ टाइट आउट्स थे जो कि आपको कंटेंट में सॉल्व करके दिए गए थे, जिसे आपने कहाँ करना है, अपनी नोटबुक के अंदर करना है, ठीक है। और इसके बाद चैप्टर नंबर 3, कम टू द चैप्टर नंबर 3 फोर्सेस। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था, पुश एंड पुल इन एक्शन। फर्स्ट टॉपिक इज़ पुश एंड पुल इन एक्शन। तो मैंने आपको क्या बताया था इसके अंदर, फोर्स का क्या मतलब है, मतलब ऐसा कोई भी वर्क जिसमें हम किसी चीज़ को पुश कर रहे हो या हम कोई चीज़ उठा रहे हो। जैसे हम अगर अपना कोई वज़न उठा रहे हैं और ड्रैगा सैक मतलब किसी थैले को उठाना, ड्रैगा सैक। और जैसे आपने देखा होगा क्रेन की मदद से जो है सामान भी उठाया जाता है, इस तरीके से हम कुछ भारी वज़न भी उठा लेते हैं और किसी चीज़ को हमें पुश करना होता है। तो पुश करने का मतलब नहीं है मैं किसी एक को धक्का दे रही हूँ, मतलब ऐसा नहीं है। जैसे कि पुश करना किसे कह सकते हैं आप, पुश करने का, जैसे आपने बॉल फेंकी है, हिट करा है किसी चीज़ को, किक करी है बॉल को, तो ये भी क्या कहलाता है, इसे भी हम क्या कह रहे हैं, पुश कह रहे हैं, ठीक है। आपने अपनी बुक में पिक्चर भी देखी थी ऑन पेज नंबर 59-60 पे कि वो बीम का क्या था, एक पेज नंबर 60 पे आपने देखा था, बीम का एक बैग था, उसे वो मूव कर रही है, किस तरीके से मूव कर रही है, किस तरह से पुश कर रही है, कभी उसे पुश कर रही है तो उसे आगे धक्का लगा कर लेके जा रही है, कभी उसे पुल कर रही है, खींच रही है, और कभी उसे इसने क्या किया, किक किए से फेंका और कभी इसे थ्रो करा है, ठीक है। किक किए, थ्रो किया है, पुश किया और पुल किया। तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, जो सारे एक्शंस हो रहे हैं, इन सब एक्शंस को हम क्या कह रहे हैं, इन सब एक्शंस को हम कह रहे हैं फोर्स। दीज ऑल एक्शंस आर कॉल्ड फोर्स, पुश एंड पुल। इसी तरह से पेज नंबर 61, लिफ्टिंग अ बॉक्स, पुलिंग अ फिशिंग रॉड और हिटिंग अ हॉकी बॉल और पुशिंग सम डो। तो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्या थी, फोर्सेस। इन सब में भी क्या अप्लाई हो रही है, फोर्स अप्लाई हो रही है। कि अगर हम कोई बॉक्स उठा रहे हैं या रॉड से जो है कुछ चीज़ों को रॉड से, जैसे हम फिश को क्या कर रहे होते हैं, पानी के अंदर जब हम रॉड डालते हैं उसके बाद उसमें फिश अटक जाती है तो उससे हम अपनी तरफ खींचते हैं, तो उससे हम क्या कर रहे हैं, पुलिंग अ फिशिंग रॉड, उसको हम खींच रहे हैं। इसी तरह से हिटिंग अ हॉकी बॉल, जब हम हॉकी खेल रहे हैं या इसी तरह से क्रिकेट खेल रहे हैं तो
बॉल को हम क्या करते हैं, हिट करते हैं, तो वो उस एक्शन को पुश कहते हैं। इसी तरह से डो आटा गूंथते हैं तो उसको हम पुश करते हैं, तो वो एक आटा सा जैसे आटा गूंथ जाता है, डो जो है बन जाती है, तो वो क्या एक्शन है, पुश। तो पुश एंड पुल इज़ अ फोर्स इज़ अ पुश एंड पुल। तो हम फोर्स को क्या कहते हैं, किस तरीके से डिफाइन करते हैं? अगर आपको आपसे पूछे कि फोर्स क्या है, तो बेसिकली फोर्स इज़ अ पुश एंड पुल। फोर्स क्या है, पुश एंड पुल है फोर्स। उसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, फोर्स की वजह से हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि अब हम ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो जैसे हम जाते हैं कहीं भी ग्रॉसरी के लिए शॉपिंग करते हैं, तो ट्रॉली लेते हैं, ट्रॉली को क्या करते हैं, मूव करना होता है, तो मूव करने के लिए हम उसको आगे की तरफ पुश करते हैं। इसी तरह से जब हम उसे चलते चलते जब हमें कहीं से रुकना होता है, तो हम एकदम उसको क्या करते हैं, पुल करते हैं, तो ट्रॉली क्या होती है, वो रुक जाती है। तो इट्स मीन हमने उसको पुल करके उसको रोक खींचते हैं ना अपनी तरफ, उसको रोक दिया। तो इससे हमने क्या किया है, स्टॉप जो एक ऑब्जेक्ट है, मतलब ट्रॉली एक ऑब्जेक्ट है, तो हमने इसको क्या किया है, मूविंग करा है इस फोर्स की वजह से। तो फोर्स हेल्प इन मूविंग और फोर्स हेल्प इन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए फोर्स हेल्प करती है, किसी भी चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए भी फोर्स अप्लाई होती है। इसी तरह से टू चेंज द डायरेक्शन, अगर कहीं डायरेक्शन चेंज करनी हो तो हमें उसी डायरेक्शन में, जैसे कि आपने देखा होगा क्रिकेट जब खेल रहे होते हैं तो बॉल को जिस फोर्स से वो फेंकेंगे, जिस डायरेक्शन से फेंकते हैं, उसी डायरेक्शन में वो फोर्स जाती है। ठीक है, तो फोर्स की वजह से डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। इसके अलावा अगर हमें कोई चीज़ तेज़ जा रही है, उसको स्लो करना है, तो उसके लिए भी हम फोर्स को अप्लाई करेंगे। सही है। इसी तरीके से आपने इसके ट्राइड आउट में देखा था कि फोर्स का क्या क्या काम था। अ फोर्स इज़ अ पुश एंड पुल एंड फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्स और क्या कर सकती है, ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर सकती है। मेक ऑब्जेक्ट स्टार्ट टू मूव, चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, मेकिंग अ मूविंग ऑब्जेक्ट मूव फास्टर, स्लोअर और स्टॉप मूविंग। तो ये सारे जो वर्ड था ये किसका था, ये फोर्स का था। ये इफेक्ट्स ऑफ क्या थे, फोर्सेस के इफेक्ट्स थे। ठीक है, फोर्सेस अराउंड अस में हमने क्या पढ़ा था कि इसके बाद ये सारे क्या था, इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस और पुश एंड पुल एक्शन। इसके बाद फोर्सेस अराउंड अस, हमारे अतराफ में भी क्या मौजूद होती हैं, फोर्सेस मौजूद होती हैं। जैसे कि कहाँ कहाँ फोर्सेस मौजूद होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जब हम किसी वर्क को कर रहे होते हैं तो हमें किसी वर्क को करने के लिए अपने मसल्स पे क्या करना पड़ता है, फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है, तो ही वो वर्क कर पाते हैं। अगर हमारे मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं तो हम क्या करेंगे, उसको अच्छे तरीके से उठा लेंगे। अब भारी वजन है तो वो हम इजीली नहीं उठा सकते, लेकिन जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जिनके मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो उसी चीज़ को, उसी भारी चीज़ को ईजीली क्या कर सकते हैं, वो उठा लेते हैं। इसी तरीके से जैसे एक बफालो होती है, बफालो से वो हल चलाने का काम कर रहे होते हैं, तो बफालो पुलिंग अ प्लग, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। तो ये जो बफालो वर्क कर रही है अपने मसल्स, ड्यू टू इट्स मसल्स, तो ये मसल्स पे क्या हो रही है, फोर्स अप्लाई हो रही है। तो मसल्स एक्सर्ट फोर्सेस, मसल कैन एक्सर्ट फोर्सेस, तो हमारे जो मसल्स हैं वो भी क्या कर सकते हैं, फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से हमने क्या देखा था कि मशीन्स आल्सो कैन एक्सर्ट फोर्सेस, मशीनों में भी फोर्स अप्लाई हो रही होती हैं। जैसे कि अब ये फ़ैन अगर ऑन होता है तो फ़ैन चल रहा है, या कोई क्रेन अपना वर्क कर रही है, वॉशिंग मशीन अगर घूम रही है, तो इसके अंदर कोई फोर्स ही होगी ना जिसकी वजह से ये सारा वर्क प्रॉपर्ली हो रहा है। तो इसमें एक बैटरी लगी हुई होती है जिसमें फोर्स अप्लाई होती है, उस फोर्स की वजह से क्या होता है, ये मशीन कैन एक्सर्ट फोर्सेस। यू कैन सी इन योर बुक ऑन पेज नंबर 66 देयर आर सम machines on page number 66. तो these machine exert forces to do work. इसके बाद आपने देखा था पेज नंबर 67 पे there are forces in nature too. क्या होता है कि नेचर में भी फोर्सेस हैं, मौजूद हैं। जैसे कि यहाँ पे एक तूफान आया, टाइफून आया, इसकी वजह से एक ट्री गिर गया कार के ऊपर। तो ये ट्री किसकी वजह से गिरा है, कि हवा की वजह से, यानी कि विंड इतनी तेज़ थी, विंड में इतनी फोर्स थी कि उसने विंड, उस हवा की वजह से वो ट्री गिर गया। और वो ट्री किस पे गिर गया, एक गाड़ी पे, कार पे गिर गया। इसी तरीके से आपने देखा होगा अर्थक्वेक आते हैं, तो अर्थक्वेक इतने तेज़ होते हैं, इतनी उनमें फोर्स होती है कि वो पूरी के पूरा एक घर को क्या कर सकते हैं, गिरा सकते हैं। जैसे अभी कुछ अरसे पहले या अभी बारिशें हुई, सैलाब आए, तो उनकी वजह से कुछ दीवारों की क्या गिर गई, कुछ घरों की दीवारें गिर गई। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ये नेचर में हो रही हैं। तो नेचर में भी क्या हो सकती है, फोर्स अप्लाई हो सकती है। तो हमारे मसल्स फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, मशीन्स फोर्स अप्लाई हो सकती है, मशीन्स के अंदर और नेचर के अंदर भी क्या हो सकती हैं, फोर्सेस अप्लाई हो सकती हैं। तो हमारे अतराफ़ में भी क्या मौजूद हैं, फोर्सेस अराउंड अस। तो नेक्स्ट इज़
डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। वो हमने इसमें 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ी थी। कौन कौन से फोर्सेस हमने पढ़ी थी? इलेक्ट्रिसिटी, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में हमने क्या पढ़ा था? जब हमने एक बलून लिया था और उस बलून को हमने अगर अपने सर पे रब करते हैं तो उस पे वो बलून को सर पे रब करने की वजह से क्या हुआ था? इलेक्ट्रिक चार्जेस डेवलप हुए थे बलून के ऊपर। फिर अगर हमने वो बलून को किसी कपड़े पे रब किया तो उस पे रब करने की वजह से उस बलून में क्या हुआ? इलेक्ट्रिक चार्जेस डेवलप हुए। फिर हम उस बलून को अगर अपने हेयर के पास लेके गए तो वो हेयर क्या करना शुरू हुए? उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए, ठीक है, मतलब उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए, पुल हो गए बलून की तरफ। तो उस बलून के अंदर क्या हुआ? इलेक्ट्रिक चार्जेस डेवलप हुए, ठीक है। द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। यू कैन सी इन दिस पिक्चर। इस पिक्चर में जैसे आपने देखा कि ये जो बलून की यू कैन सी इन द बुक ऑन पेज नंबर 70 क्या हो रहा है इसके अंदर कि जो बलून है ये अट्रैक्ट कर रहा है हेयर्स के ऊपर, ठीक है। तो इस बलून के अट्रैक्शन, ये बलून क्यों अट्रैक्ट कर रहा है हेयर्स को अपनी तरफ? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इसके अंदर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक चार्जेस डेवलप हो रहे हैं, इसकी वजह से ये बलून जो है हेयर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो और ये आपने सर्दियों में भी देखा होगा कि आपके कपड़ों में से एक चिंगारी सी निकलती है, या ब्लैंकेट या चादर जब आप अपने ऊपर ओढ़ते हैं तो उसमें से एक चिंगारी से निकलती है। तो वो एक्चुअली क्या होती है? वो लाइट सी जो निकल रही होती है वो क्या होती है? एक्चुअली वो क्या है? वो भी इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस मौजूद होते हैं, सिर्फ तारों में मौजूद नहीं है बल्कि हमारे ब्लड के अंदर भी क्या मौजूद है? आयरन मौजूद है, जिसकी वजह से आयरन में क्या मौजूद होता है? इलेक्ट्रिक चार्जेस, जिसकी वजह से हमें क्या लग सकता है? करंट लग जाता है। तो करंट लगने की वजह ये होती है कि हमारा ब्लड क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। तो इसमें क्या मौजूद है? चार्जेस मौजूद हैं। तो इसीलिए जब हम इलेक्ट्रिक का कोई वर्क कर रहे होते हैं तो क्या करते हैं? प्लास्टिक की कोई चीज़ पहन लेते हैं, जैसे प्लास्टिक के हैंड ग्लव्स यूज़ करते हैं, या फिर प्लास्टिक के शूज़ हमें पहनने हैं, रबर के शूज़ हमें पहनने, ताकि हम अपने आप को किससे सेव कर सकें? करंट से सेव करें, उन इलेक्ट्रिक चार्जेस से हम अपने आप को सेव कर सकें। तो दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फोर्स। इसमें हमने कितनी चीज़ें पढ़ी हैं? कौन कौन सी फोर्स की टाइप्स हमने पढ़ी थी? नंबर 1 इज़ इलेक्ट्रिक फोर्स, नंबर 2 मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स जैसे आपको पता है, आपने मैग्नेट का यूज़ किया होगा, तो आयरन से बनी हुई चीज़ों को मैग्नेट क्या करता है? अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और हमने ये भी पढ़ा था कि मैग्नेट्स के क्या होते हैं? 2 टाइप्स ऑफ पोल होते हैं, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। दोनों डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अगर इफ़ बोथ सेम पोल्स, अगर उन सेम पोल्स को एक दूसरे की तरफ किया जाएगा तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो हमने उसको क्या कहा था? फोर्स ऑफ रिपल्जन। ये कौन सी कुव्वत थी? रिपल्जन की कुव्वत थी, फोर्स ऑफ रिपल्जन थी। एंड अगर हम डिफरेंट टाइप्स के पोल्स को करेंगे एक दूसरे के सामने तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो दिस इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो नाउ नॉर्थ पोल एंड नॉर्थ पोल, दोनों जो पोल्स होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। एंड नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो दिस इज़ द फोर्स ऑफ, दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स। यू कैन सी ऑल्सो इन योर बुक ऑन पेज नंबर 68 कि these both are joined together, north pole and south pole are joined, ठीक है। तो ये थी हमारी मैग्नेटिक फोर्स। द पुल ऑफ मैग्नेटिक इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसने एक दूसरे को अपने पास क्या कर लिया है? खींचा, और अपने ये दोनों जुड़ गए ना, दोनों मैग्नेट बार एक दूसरे से जुड़ गए। तो ये दोनों डिफरेंट बार्स थे, एक तरफ साउथ पोल एक तरफ नॉर्थ पोल, तो ये इसलिए एक दूसरे से जुड़ गए, ठीक है। तो इट इज़ द मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी तरह से जब हमने ये देखा था कि दोनों डिफरेंट जो सेम पोल्स थे, नॉर्थ पोल एंड नॉर्थ पोल, तो इन दोनों ने एक दूसरे को क्या करा? रिपेल किया। तो रिपेल करने की वजह से ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गए? अलग हो गए। तो इट इज़ द फोर्स ऑफ रिपल्जन, ठीक है। इसके अलावा जब आप मैग्नेट को कहीं भी रखते हैं, किसी भी चीज़ पर रखते हैं, जैसे आपने यहाँ देखा इस पिक्चर के अंदर मैग्नेट रखा हुआ है, मैग्नेट ने इस क्लिप को अपनी तरफ क्या कर लिया? अट्रैक्ट कर लिया। तो इसमें किसी भी कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये जो प्रोसेस है ये खुद ब खुद हो रहा है। तो इट इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसी तरह इलेक्ट्रिक फोर्स भी क्या थी? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स थी। और मैग्नेटिक फोर्स भी क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है। अब इसके बाद हमने थर्ड हमने पढ़ी थी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन और ग्रेविटी। हमने क्या पढ़ा था इसमें? ग्रेविटी। ग्रेविटी का क्या मतलब है? जैसे कि अब हम
कितनी भी ऊंची जंप लगा लें, ठीक है ना, नो मैटर हाउ हाई वी जंप, कितनी भी ऊंची हम जंप लगाने हैं, हमें क्या करना है, वापस ग्राउंड की तरफ ही आना है, तो वापस नीचे ही आना है। वो ऐसा क्यों होता है, हम हवा में तो नहीं रहते हैं मौजूद, जैसे कि अगर हम कोई भी चीज़ हवा ऊपर उछालते हैं तो वो वापस कहाँ आती है, ग्राउंड की तरफ ही आती है, नीचे की तरफ ही आती है। ऐसा क्यों होता है, एक ऐसी फोर्स मौजूद है जो कि उस ऑब्जेक्ट को उस अपनी तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। तो उस फोर्स को हमने क्या कहा था, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। वो टू ऑब्जेक्ट्स कौन से, एक ऑब्जेक्ट तो आपका कोई भी चीज़, जैसे कि मैं खुद या ये चौक है, अगर मैं इसे उछालूंगी तो वो नीचे गिरेगी, मैं खड़ी हूँ, तो जैसे एक ऑब्जेक्ट तो ये हो गया। और सेकंड ऑब्जेक्ट इज़ द सरफेस ऑफ अर्थ। तो वो जो सरफेस ऑफ अर्थ है, हम उसके साथ क्या हैं, जुड़े हुए हैं, हम उस सरफेस ऑफ अर्थ पे खड़े हुए हैं इजीली। तो हम क्यों, कैसे खड़े हुए हैं, उस फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। ज़मीन के अंदर एक ऐसी फोर्स मौजूद है जो कि हमें अपनी तरफ क्या कर रही है, पुल कर रही है, खींच रही है, जिसकी वजह से हर चीज़ अपनी जगह पे मौजूद है। आप जैसे देखते हैं अपने घर में भी बुक्स अपनी जगह पे मौजूद होती हैं, कॉपीज़ अपनी जगह पे मौजूद रहती हैं। ऐसा तो नहीं ना कि इधर उधर हवा में उड़ रही हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और या आप कितनी भी ऊंची जगह से कोई भी चीज़ छत पे से जाके बॉल फेंकेंगे तो बॉल भी वापस कहाँ आएगी, ग्राउंड की तरफ ही आएगी, ज़मीन की तरफ ही आएगी, तो अर्थ की तरफ आएगी। ऐसा क्यों होगा, बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी की फोर्स की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे अब हम स्पेस में चले जाते हैं तो वहाँ पे हमारी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है वो बिल्कुल क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटी वहाँ नहीं रहती तो स्पेस में हम अपने पैर नहीं रख सकते। जैसे मून पे जो जाने वाले लोग होते हैं, मून पे जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, वो वहाँ खड़े नहीं हो पाते, बल्कि वो क्या होते हैं, वहाँ हवा में उड़ना शुरू हो जाते हैं, स्पेस में उड़ना शुरू हो जाते हैं। वो इसी वजह से होता है कि वहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं होती, तो वहाँ वो किसी भी चीज़ को रख नहीं सकते, ज़मीन पे नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, उस मून की जो सरफेस है, मून की सरफेस में वहाँ कोई भी चीज़ नहीं रुक पाती, बिकॉज कि वहाँ पे क्या नहीं है, ग्रेविटी की फ़ोर्स मौजूद नहीं है। तो इस ग्रेविटी की फ़ोर्स से ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं अपनी अपनी जगह पे क्या हैं, रुके हुए हैं, स्टॉप हैं, इधर उधर हवा में नहीं उड़ रहे। तो दिस इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सही, इसी तरह से जैसे आपने देखा होगा स्काई डाइवर्स जो होते हैं, जो एरोप्लेन से और प्लेन से क्या करते हैं, जंप करते हैं, तो वो जंप करते हुए डायरेक्ट पैराशूट उनका ओपन हो जाता है, तो वो जब आते हैं तो वो वापस कहाँ आ जाते हैं, ज़मीन की तरफ ही आते हैं। क्यों, उनको कौन सी फोर्स खींच रही है, बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, ये नीचे की तरफ आ जाते हैं। सही, ऑलवेज फॉल टू द अर्थ, हमेशा कहाँ आते हैं, ज़मीन पे ही आते हैं। इट इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इट इज़ आल्सो द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये भी कौन सी फोर्स थी, ये तीनों फोर्सेस कौन सी है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि इसमें दूसरी चीज़ का कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है, बल्कि खुद ब खुद ये प्रोसेस क्या हो रहा है, तो इसलिए हम इसे कह रहे हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, बिकॉज इट हैपन विदाउट टचिंग। ये जो प्रोसेस हो रहे हैं इसमें एक दूसरे की टचिंग की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये खुद ब खुद प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, इसके बाद था फ्रिक्शन। लास्ट इज फ्रिक्शन। अब जैसे मैं ये चौक से इजीली अपने हाथ में मैंने चौक पकड़ के मैंने यहाँ पे बोर्ड पे फ्रिक्शन लिखा, तो अगर मेरे हाथ में ऑयल लगा हुआ हो, ग्रीस लगा हुआ हो, तो मैं इजीली इस चौक को नहीं पकड़ सकूँगी। ठीक है ना, तो क्या चीज़ नहीं होगी, कौन सी फोर्स नहीं होगी, किस फोर्स की वजह से मैंने इस चौक को अपने हाथ में अच्छे से ग्रिप किया हुआ है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से मैंने इसे अपने हाथ में ईजिली ग्रिप किया हुआ है। अगर ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होगी तो ये चौक भी मेरे हाथ में नहीं रहेगी, बल्कि ये चौक क्या हो जाएगी, स्लिप हो जाएगी और गिर जाएगी मेरे हाथ से, या फिर मैं इससे क्या नहीं कर सकूँगी, यहाँ बोर्ड पे इजीली लिख नहीं सकूँगी। इसी तरह बोर्ड भी जो है रफ़ है, अगर यहाँ पे ऑयल हो तो यहाँ बोर्ड पे भी लिखा नहीं जाएगा, बल्कि यहाँ से भी क्या हो जाएगी, चौक स्लिप हो जाएगी। तो दिस इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जैसे कि अब ये बुक और इस चौक के बॉक्स के दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटी मौजूद है, तो ये जो चौक का बॉक्स है इस बुक के ऊपर क्या है, रुका हुआ है, रुक गया। अगर यहाँ पे ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मौजूद नहीं हो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, दोनों का कांटेक्ट हो रहा है एक दूसरे से, तो ये यहाँ पे इजीली स्टॉप है। अगर ये इजीली यहाँ पे नहीं रुक सके, अगर मैं यहाँ पे इसको ज़रा सा स्लोप कर दूँ, टेढ़ा कर दूँ, तो ये पूरा चौक का बॉक्स क्या होगा, गिर जाएगा। तो मैंने ये सिर्फ इसे स्लोप बना दिया, तो स्लोप बनाने की वजह से मैंने क्या किया, इसकी फ्रिक्शन की फोर्स ख़त्म कर दी, तो ये क्या हो गया, गिर गया। अभी इसने इसको रोके हुए रखा हुआ है, तो चौक के बॉक्स और बुक के दरमियान कौन सी फोर्स मौजूद है, फ्रिक्शन फोर्स मौजूद है, जिसकी वजह से ये रुका हुआ है, एक दूसरे पे रुके हुए। इसी तरह से बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनके दरमियान क्या मौजूद होती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मौजूद होती है।
जैसे कि आप अपनी बुक के अंदर भी देख सकते हैं किस जैसे कि आप ये एक चाइल्ड है, ये फर्श पे चलते चलते स्लिप हो गई। इसके स्लिप होने की वजह क्या थी कि ये स्लिप क्यों हुई है, क्योंकि यहाँ पे जो फर्श है वो कैसा हो रहा है, गीला हो रहा है। तो ये फर्श, अगर ये जो फर्श गीला हो रहा है तो इस फर्श पे इसने पैर रखा और ये स्लिप हो गई। तो यानी कि ज़मीन पे जब हम चलते हैं तो हमारे शूज़ के दरमियान और ग्राउंड के दरमियान क्या होती है, एक फ़ोर्स मौजूद होती है, उसे हम कह रहे हैं फ्रिक्शन फ़ोर्स, जिसकी वजह से हम इजीली वॉक कर रहे हैं। ठीक है, अगर यही फ्लोर स्लिपरी हो जाए या वहाँ पानी पड़ा हुआ हो या हम कुछ ऐसे शूज़ पहन लेते हैं जिनका सोल जो होता है वो बिल्कुल स्लिपरी होता है, तो उसकी वजह से हम क्या होते हैं, स्लिप हो जाते हैं। क्यों? ये स्लिप होने की वजह क्या होती है, वहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो गई, ख़त्म हो गई, तो हम क्या हो गए, स्लिप हो गए। तो व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या थी, फ्रिक्शन इज़ द फोर्स विच गोज़ अगेंस्ट मोशन व्हेन द टू सरफेसेस आर इन कॉन्टेंट। तो जब टू सरफेसेस का कॉन्टैक्ट होता है एक दूसरे से, तो वहाँ पे एक क्या डेवलप होती है, फोर्स डेवलप होती है, जो कि उनको एक दूसरे के ख़िलाफ़ क्या करती है, स्लिप होने से रोकती है, रोके रखती है, ग्रिप करके रखती है। तो उस फोर्स को हम क्या कह रहे हैं, फ्रिक्शन कह रहे हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो इसके अलावा इन सब चीज़ों को मेजर करने के लिए भी क्या था, मेजरिंग फोर्सेस। हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं इन सब चीज़ों को, इनका एक यूनिट होता है, उस यूनिट को हमने क्या कहा था, न्यूटन। न्यूटन के ज़रिए हम इन सारी फोर्सेस को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। जैसे कि हर चीज़ को मेजर करने के लिए एक यूनिट मौजूद होता है। जैसे अगर आप कहीं चावल लेने जा रहे हैं या मिल्क वगैरह लेते हैं, जैसे मिल्क को लेते हैं तो आप क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए लीटर का वर्ड यूज़ करते हैं कि 1 लीटर हमें मिल्क चाहिए। ठीक है, अगर आप इसी तरह से चावल लेते हैं तो आप कहते हैं 1 kg आपको राइस चाहिए। तो यहाँ जब हम फोर्स को मेजरमेंट करेंगे तो उसको हम न्यूटन में करेंगे। तो यूनिट ऑफ फोर्स क्या हुआ, न्यूटन। फोर्स, मेजरमेंट ऑफ फोर्स का यूनिट क्या हुआ, न्यूटन हुआ। इसे हम क्या कहेंगे, न्यूटन कहेंगे। और इसे हम स्प्रिंग बैलेंस के ज़रिए या फोर्स मीटर के ज़रिए क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो ये सब टॉपिक्स क्या कहाँ थे, इन चैप्टर नंबर 3 में ये सारे टॉपिक्स थे जो कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिटेल में पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसकी एक्टिविटीज़ कौन कौन सी थी, वर्कबुक एक्टिविटीज़ सिर्फ इसकी थी 3.1, 3.2 एंड 3.6, जो कि आपको अपनी वर्कबुक में करनी है। 3.1 में आपको पुश एंड पुल लिखना था एंड 3.2 में आपको ये वर्कबुक की एक्टिविटीज़ आपको कंप्लीट करनी थी। ठीक है, अपनी वर्कबुक के अंदर। इसके अलावा और सारी जो इसकी एक्टिविटीज़ थी वो हमने स्किप कर दी हैं सारी एक्टिविटीज़, क्योंकि वो मेजरिंग फोर्सेस वाली एक्टिविटीज़ थी, तो वो हमने सारी स्किप कर दी। इसके अलावा हमने सिर्फ इसमें की है 3.6। तो ये 3 एक्टिविटीज़ हैं आपकी चैप्टर नंबर 3 में। इसी तरह से आपके कुछ राइट आउट्स हैं जो कि आपने अपनी नोटबुक के अंदर करने, सारे राइट आउट आपको अपनी नोटबुक में करने हैं और सारी एक्टिविटीज़ आपको वर्कबुक में करनी है। और ये दोनों चीज़ें आपको स्कूल के अंदर सबमिट करवानी है। इसी वीक के अंदर अपना वर्क कंप्लीट करने के बाद आपको ये दोनों चीज़ें क्या करनी है, सबमिट करवानी है। और आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है असेसमेंट की। असेसमेंट की प्रिपरेशन करने के लिए क्या होना चाहिए, आपको सारे राइट आउट याद होने चाहिए। इसके अलावा आपको सारे वर्कबुक एक्टिविटीज़ आपको याद होनी चाहिए। असेसमेंट का पैटर्न क्या है वो मैं अब आपको बता देती हूँ कि व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ असेसमेंट। फर्स्ट सेमेस्टर मिड टर्म असेसमेंट पेपर, इसमें सबसे पहले क्या है, सेक्शन ए विच इज़ कंपलसरी। सेक्शन ए में क्या मौजूद है, एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, एमसीक्यूज मौजूद हैं। इसके बाद है सेक्शन बी। सेक्शन बी इंक्लूडेड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। सेक्शन बी में क्या है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। इसके भी आपको 5 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे। इसी तरह से सेक्शन सी क्या है, डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चंस, यानी कि लॉन्ग।
दिस इज़ योर असेसमेंट पैटर्न। इसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। आपको मैंने सारा समझा दिया है, कंटेंट अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया होगा। और ओके, नाउ इन योर कॉपी मेक क्लोजिंग पेज एंड मेक इंडेक्स लाइक दिस। यू कैन सी, नज़र आ रहा है, यू कैन सी मैंने इस पेज पे बनाया। आपको अपनी कॉपी के ऊपर, वर्कबुक कॉपी जैसे आपकी ये है, इस पर आपको इंडेक्स बनाना है, ठीक है। और इसमें आपको हर चीज़ लिखनी है, डेट एंड डे वाइज। और लास्ट में आपको क्लोजिंग करनी है, फर्स्ट सेमेस्टर मिड टर्म हैज़ बीन क्लोज्ड एंड देन मेक कंटेंट लाइक दिस। राइट नेम ऑफ 3 चैप्टर्स, हेल्दी लिविंग, फिश एंड फ्रॉग एंड फोर्सेस। तो इट इज़ योर कंटेंट, ठीक है। तो आपको ये यहाँ पे कंटेंट करना है, कंटेंट लिखना है और क्लोजिंग पेज बनाना है। तो आपको ये सारी चीज़ें क्या करनी है, स्कूल में सबमिट करवानी है। कॉपीज़ एंड वर्कबुक्स आपको अपनी स्कूल में सबमिट करवानी है। इट इज़ आवर लास्ट वीडियो ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर मिड टर्म कॉन्टेंट। ये हमारी फर्स्ट सेमेस्टर मिड टर्म कॉन्टेंट की लास्ट वीडियो थी। ओके, टेक केयर, अल्लाह।